Thanks. So yesterday we have learned something about our heart. I will revise that in very short. So we learned that heart resides in the chest cavity just behind the sternum, sternal bone, and slightly toward left side. This part is apex, this is base, and there are 4 chambers in the heart, 2 atria and 2 ventricle. It is basically a pump, the part of which receives the blood from the body through the superior and inferior vena cava, and that is pumped to the right ventricle. Right ventricle pumps the blood to the lungs, as it has to function less, so it is smaller than the left ventricle, which forms the most of the apex. The blood from the lungs, which is oxygenated, then goes to the left atrium through the 4 pulmonary veins. Okay, so normally we know that veins contain impure blood. That is the concept. But here the veins are taking pure blood to the heart. So in lungs, the artery contains the impure blood and veins contain the pure blood. Is the concept clear to everybody? So 4 pulmonary veins, which comes to the left atrium, and then it goes to ventricle, and from ventricle the bigger vessel, which is aorta. We can see this aorta is going from here, and it takes full turn and then goes down in the abdomen. Okay, then there are walls to keep the flow in one line only. Okay, so first the atrium contract, then the ventricle contract, and this contraction is being supervised by the pacemaker. We can see that here the right atrium is there. This is tricuspid wall. There are 3 cusps here. Okay, then this is bicuspid wall between the left atrium and left ventricle. That is known as mitral wall. Then the pulmonary artery, which arises from the right ventricle, and aorta, which arises from the left ventricle. Okay, this aorta, this is aortic trunk, and then it goes downward. Okay, these are the vena cava, both opens in the atrium. Okay, so here the pump, this pacemaker is there, and this is known as SA node, which send the frequency, send the electric current with the frequency of between 60 to 100, normally at around 70-72 beats per minute. Okay, and then this goes to the AV node, and from AV node this whole conduction system goes to the ventricles. So when the SA node generate the impulse, first the atria contract, then there is a, because AV node act as some blockage there, not blockage, like a speed breaker, and so the current is, which is generated from the SA node, goes to ventricle a little later. So first the atria contract, and then current reaches the ventricle, so ventricle contract. Okay, that's how the whole heart works. If Sir, one question. bola. Both atrias contract together, both ventricles contract together. Is this the way? Yes, almost same. Okay. Okay. Then this is artificial pacemaker. If our pacemaker doesn't work, then we need this artificial pacemaker. This is in condition of the heart block, which we have discussed yesterday. And for the irregular beats, this has to pace. Sir, full screen करा ना ते कट होतं. अच्छा, एक मिनिट कसं होईल तेच बघतो. असं आता झालं? हां. ओके.
Then heart disease are not only the ischemic heart disease. So we have congenital heart disease, which we have discussed earlier, that normally there are holes in the heart in the fetus. Fetus means the baby which is inside the womb. So it has holes, so as the most of the blood diverts to from right side directly to the left side. So lungs need not to get filled. Okay, this is to conserve the energy. But once the baby comes out, these holes start getting close, and if the holes remain persistent in the child, in the newborn, then they may create problems. Then there may be abnormal connections. Abnormal connection can cause, if we have direct connection from atria to ventricle, some abnormal fiber करते ना, कभी बहुत चतुर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मीटर से बिजली का रीडिंग आएगा तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट तार को बिना मीटर से जोड़े सीधा घर में डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं. तो ऐसे कई बार एबरेंट फाइबर होते हैं जो एट्रिया से वेंट्रिकल में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं. वी नीड नॉट टू रिमेंबर दैट, बट तो उसमें कई बार टेकिकार्डिया हो जाता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. Then wall defects, we know there are two types of wall defect. Stenosis means the wall is not opening fully, and regurgitation means wall is leaking, so that everything goes backward. And blue baby, we learnt about that abnormal connections lead to passage of unoxygenated blood directly to the left ventricle and getting supplied to right ventricle. Then complex heart disease, like we have, these are the septal defects we can see. Then tetralogy of Fallot, could you see that? Okay, there are multiple types of abnormalities there. And these child, when they cry, they become blue. Then there may be some other abnormalities like more number of fingers. There are nasal abnormality, eye abnormality. The child who is smiling has Down syndrome. And so these are all types of abnormalities. Then we have discussed about the rheumatic heart disease, that is due to the infection with the bacteria in the early childhood, Streptococcus beta hemolyticus, and because our immunity sometimes get mistaken our own tissues, because our own tissue in the wall that is similar to the bacterial antigens. So our body attacks on our own wall, antigen antibody reaction occur, and that's why our heart walls get damaged by our own cells. Okay, so that becomes stenosis, that becomes narrowed, and leakage also occur. Okay, and the treatment is penicillins at monthly interval, and with the other drugs for correcting the problem. Next, other disorders could be the cardiomyopathy. So cardiomyopathy can be of two types: dilated cardiomyopathy, the whole heart get dilated. Dilated means all chamber get widened, and because they get widened, then there is space between the walls, so there is leakage also, and that heart is not able to pump more. And then another type is hypertrophic, means there is hypertrophy of the muscle wall due to idiopathic reason. Hypertrophy also can occur because of the blood pressure. That is not caused as hypertrophic cardiomyopathy, but muscle hypertrophy can also occur because of blood pressure. Why because of blood pressure? Because the heart has to work more to push the blood. Okay, so then another type of disease is, now we will start today's thing. So another type of heart disease is the disease of the lining of the pericardium. Lining means outer structure of the heart, that is pericardium. Peri means surrounding, cardium matlab heart. So in that case, the fluid get
accumulated between the heart and pericardium. Okay, means within the two layers, myocardium and pericardium, there is fluid accumulation, and usually it is due to tuberculosis or other infection. Then one disease known as SLE, many other causes, but tuberculosis is very common cause. Treatment is by removal of that fluid, and this can be treated well. Then there is something known as heart attack. So heart attack we have discussed yesterday, that heart attack means infarction or damage to the muscle of the heart. And why there is damage to the muscle of the heart? Because heart has three layers: endo, myo, and pericardium. Okay, so endo is the innermost layer that get okay, so endocardium is directly in touch with the oxygenated blood. So it takes the oxygen directly from the blood in the heart. So only the myocardium is not in contact with the blood directly. So it is dependent on the blood vessels which supply the myocardium. So normally the blood supply is enough to supply whole myocardium, and when this supply occurs is during the diastole, means when the heart is relaxing, that at that time it is getting the blood supply. Okay. Because of hypertension, that is blood pressure, the heart walls get thicker. When the wall gets thicker, then that blood supply does not reaches the who is unmuted. सर थोड़ा हिंदी या मराठी हाँ, अगर हाँ। सबको हिंदी समझ में आ रहा है तो, बिकॉज ऑलरेडी साइंस तो दिमाग के ऊपर से जाता है, ऊपर से ये। अच्छा, नहीं हिंदी में बोलेंगे ना, सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग दिखते नहीं हो, फिर पूछते नहीं हो, तो मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है। सर मेरा कैमरा ऑन है सर। अच्छा, नहीं मेरे को है ना 4 लोग दिख रहे हैं। रविंद्र काले तो मैं ही हूँ, अमृतवाणी योग केंद्र दैट इज अवर भानु जी, मनीषा जी अब दिखने लगी, नीलिमा जी का कैमरा ऑफ है, वेंकटेशन जी का कैमरा ऑफ है। ठीक है, ऑफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑन रखे तो अच्छा लगता है। एक फीलिंग आती है अपनेपन की। तो हमने ये देखा कि हार्ट में 4 चेंबर हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। तो उसकी जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस पर वर्कलोड ज्यादा आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की मांसपेशियां ज्यादा मोटी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी चलती है हमारे इसमें। एक हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरट्रॉफी मतलब कोई चीज ज्यादा फूल जाना, है ना, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स की हाइपरट्रॉफी होती है। एंड दूसरा जो है एट्रॉफी, एट्रॉफी मतलब सिकुड़ जाना। तो एट्रॉफी कब होगी? जब उस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो एट्रोफीड हो जाएगा, है ना, वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें वेंट्रिकल की मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और हाइपरट्रॉफी होने के कारण जितना ब्लड मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं रहता उसको। दूसरा क्या होता है कि एज के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी की जो पाइपलाइन है ब्लड की, वो पूरी पाइपलाइन जो है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। कैल्शियम कैसे डिपॉजिट हो रहा है? वहां पे प्लैक बन रहा है। तो हार्ट को ये देखेंगे, 2 मेन आर्टरीज है, राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और उसकी फिर कई सारी ब्रांचेस हैं। लेफ्ट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। अब नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी जो बच्चों में आती है वो ऐसी होती है, बिल्कुल खुली हुई, लेकिन उम्र के साथ साथ उसमें
कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है और इस प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। स्क्लेरो मतलब हार्ड, ब्लड वेसल्स हार्ड हो गई, एथेरोस्क्लेरोसिस है ना। तो ये प्रोसेस होती है। इसके कारण क्या होता है, यदि प्लैक कहीं पे बड़ा है, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा प्लैक है, तो वहां पे सप्लाई बहुत कम हो रही है। सप्लाई कम होगी तो आगे वाले हार्ट को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा तो एंजाइना होगा। जब भी हम ओवरलोड करेंगे, वर्क ज्यादा करेंगे, तो एक्सर्शन पे हमको चेस्ट में पेन होगा। टिपिकली जब किसी को एंजाइना होता है तो वो बिल्कुल भारीपन सा लगता है कि बहुत भारी हो गया, कोई दबा रहा है चेस्ट को, सांस भी नहीं ली है। यूजुअली ये सिम्टम होते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, नेक में, जॉ में, दोनों आर्म्स में। लेफ्ट आर्म में ज्यादा होता है, इधर टुवर्ड्स द अल्नर साइड, ओके, एंड दोनों साइड चेस्ट में होता है। ऐसा क्यों होता है, पेन ऐसा इतनी जगह क्यों फैल जाता है? क्वेश्चन फॉर यू। हमारी बॉडी में बाहर कोई भी पिन चुभोता है, मुझे यदि यहाँ पे कोई पिन चुभोएगा, आई कैन टेल आफ्टर 5 मिनट ऑल्सो कि किस जगह पे पिन चुभाई है, और जितने जगह पे चुभाई है उतनी ही जगह पे मुझे पेन फील होगा। सब सो गए क्या? हाँ करेक्ट। नहीं सर। हाँ, तो वो ऐसा इसलिए होता है कि बाहर नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा है। जैसे हमारा हैंड है, हैंड की नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा है, इससे इतने सारे फंक्शन करते हैं, उतनी फुट की नहीं होती जितनी हैंड की होती, क्योंकि हम टच भी करते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट टच हम पता कर सकते हैं हैंड से। तो नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। अंदर विसरा जो बोलते हैं, विसरा मतलब आंतरिक अंग, उनकी नर्व सप्लाई ज्यादा नहीं होती, और उनमें लोकलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो हमको कोई बोले कि अंदर बता दो पेन कहाँ हो रहा है, तो अंदर हमको पेन महसूस होता ही नहीं है। हमको पेन जो होता है वो सरफेस पे महसूस होता है। समझ पाए आप? इन रेफरेंस टू द सरफेस, मतलब मुझे पेन यहाँ होगा, अंदर नहीं फील होगा पेन विसरा का। ठीक है, सम पॉइंट इन द बॉडी वहां बाहर के एक्सटर्नल रेफरेंस से होगा। तो होता क्या है कि हमारी जो नसें निकलती हैं स्पाइन के बीच में से, छोटी छोटी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से नर्व्स आती हैं, वो नर्व्स अलग अलग जगह पे सप्लाई करती है। तो वही नर्व्स बाहर भी सप्लाई करती है, वही नर्व्स अंदर भी सप्लाई करते हैं। तो ऐसा समझ ले, जो खाने की नली है, इसोफेगस, हार्ट, इन सबको जो नसें सप्लाई करती हैं वो इवन हाथ को भी करती हैं और ये एरिया में भी करती है, इसलिए वो हमको पेन वहां फील होता है। ठीक है, बिकॉज ब्रेन कैन नॉट रिकॉग्नाइज बिटवीन कि अंदर पेन है या बाहर पेन है। समझ में आया? ये नहीं आया तो कोई बात नहीं। मेरे पापा को कार्डियक अटैक ही आया था, तो पहले 2-3 दिन तो उन्होंने बेल्ट लगाया था, उनको फील हो रहा था कि नेक में पेन हो रहा है। यस, फिर एक दिन 2 दिन पहले उनको लगा कि मुझे एसिडिटी हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास गए और बोला कि मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी का वो जो मिलता है ना सिरप, पिंक कलर का, वो लेके आए थे। फिर वेरी नेक्स्ट डे फिर उनका लेफ्ट हैंड हेवी हो गया। फिर उनको लगा कि मुझे बैक में पेन हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास गए, बट तब तक बहुत लेट हो गया था। ही इज नो मोर। तो ऐसा होता है, पेशेंट लोग अपनी खुद की डायग्नोसिस बना के जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें उसी हिसाब से ट्रीट करो, डॉक्टर हमको इन्वेस्टिगेट मत कराओ, मैं एसिडिटी भेजे है। इवन डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, वो तो सीधा दवाइयां ले लेते हैं, है ना। और डॉक्टर के लिए मुश्किल होता है। अभी बोलने से कुछ फायदा नहीं, जो हो गया डॉक्टर की हाँ, डॉक्टर ने कुछ भी उनको, इवन उनका बीपी भी चेक नहीं किया। हाँ, बस वही बता रहा हूँ। बोले एसिडिटी जैसे लग रहा है, तो उन्होंने बस दवाई ठीक दी। है, हम यहाँ पे किसी पर्सनल केस के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जब हमको सिम्टम नहीं हो रहे होते तो हम नहीं पहचान सकते। इवन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर्स टू आइडेंटिफाई, बिकॉज इवन MI कैन अकर विद द सिम्टम ऑफ हिकअप। केवल हिचकी आती रहती है मरीज को और उसको MI होता है, अटैक होता है। ठीक है, सो वाइड वेराइटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक है ना।
Then perspiration is a very good thing to know, क्योंकि perspiration कार्डियक पेशेंट में यूजुअली perspiration होता है, यूजुअली एक्सर्शन के साथ होता है. मतलब जब भी कभी हमारे ब्लड वेसल चोक होंगे तो हमको एक्सर्शन के साथ हमारी तकलीफ बढ़ेगी, जब हम रेस्ट करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा. ठीक है. तो ये प्लैक होता है. प्लैक जो होता है वो नैरो करता है, लेकिन यूजुअली आपने देखा है कि अटैक जो आते हैं वो जल्दी एज में आते हैं मोस्टली, है ना. 50s में अटैक आते हैं. ठीक है. जबकि ये प्रोसेस लंबे टाइम तक चालू रहती है. तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे वेसल्स नैरो होने लगते हैं तो बाहर कोलेट्रल्स खुलने लगते हैं. कोलेट्रल्स मतलब कुछ बॉडी में वेसल्स होती हैं जो एडिशनल दी होती हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो दे विल वर्क, लाइक बाईपास चैनल, नेचुरल बाईपास चैनल्स. ओके. तो जब ग्रेजुअली ये वेसल का जो डायमीटर है वो रिड्यूस होने लगता है तो कोलेट्रल्स डेवलप होने लगते हैं. दैट कॉजेस सर्कुलेशन, गुड अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन. लेकिन जब यंग एज में होता है तो यूजुअली कॉज क्या होता है कि प्लैक रप्चर हुआ या वहां पे एक थ्रोम्बस बन गया. अब व्हाट इज थ्रोम्बस? आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद YTTC में. एनीबॉडी? Thrombus is clot. Blood clot, na? Blood clot. Blood clot. यस यस. तो अंदर रॉ सरफेस मिला और उस पर ब्लड क्लॉट हो गया, है ना. ठीक है. तो जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो रास्ता पूरा बंद हो जाता है. पूरा बंद हो जाता है तो उस पेशेंट को जो वहां जहां सप्लाई कर रहा है वो एरिया डिवॉइड ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है, जिसको इन्फार्क्ट बोलते हैं. और इन्फार्क्ट में वो खत्म हो जाता है एरिया, एंड दैट इज हार्ट अटैक. ओके. कल किसी और ने पूछा था कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है. अरेस्ट मतलब जब हार्ट सीजेस टू बीट, उसमें बीटिंग बंद हो जाती है तो उसको अरेस्ट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. ओके. तो जब एंजाइना होता है तो हमको पता करना हो, एंजाइना के सिम्टम होते हैं, कई बार ECG नॉर्मल आता है तो हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग कराते हैं. एंड स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, एक तो TMT होती है, ट्रेडमिल टेस्ट सिंपल, या हो सकता है कुछ रेडियो न्यूक्लियाइड डालें. रेडियो न्यूक्लियाइड मतलब दीज आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, उनके थ्रू करते हैं थैलियम स्ट्रेस टेस्ट. तो उसमें पता पड़ जाता है कि विच एरिया इज नॉट टेकिंग अप द कंट्रास्ट. ठीक है ना. जैसे इसमें ये एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना. देन जो फाइनल हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेड है वो हम करते हैं एंजियोग्राफी से. तो एंजियोग्राफी दो तरीके की होती है, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी और एक CT एंजियोग्राफी होती है. जब हमको लगता है कि पेशेंट का रिस्क लो है तो यूजुअली हम कई बार CT एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं, और CT एंजियोग्राफी में देखते हैं कि कहाँ पे आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है. पर यदि हमको पक्का पता है कि इसको MI हुआ है तो इसको हम सीधा कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं, विच इज बेटर. और उसमें हम पता करते हैं कि कहाँ पे नैरोइंग है. ठीक है. जहाँ पे एकदम से सडनली कट ऑफ होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वेसल थोड़ा सा कट ऑफ दिख रहा है. ठीक है ना. और जब हमको पता पड़ता है कि कहाँ नैरो है, वहां पे हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं. प्लास्टी मीन्स वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव समथिंग, है ना. तो वहां पे जाते हैं, बैलून को इन्फ्लेट करते हैं. अब बैलून को इन्फ्लेट करेंगे तो वहां पे वो जो प्लैक है वो हट जाएगा, लेकिन वो बैलून जैसे ही डिफ्लेट करेंगे वो फिर से वापस आएगा. तो इसलिए वहां पे एक डिवाइस छोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं स्टेंट. एक पतले पाइप जैसा होता है. हाँ जी बोलिए, कौन बोलना चाहता है? It is the only thing what we do in angioplasty is we just try to displace that plaque towards the wall, और हम लोग wall ये थोड़ा बड़ा करते हैं. But is there any way so that a plaque can be melted or removed by some of the other means? What will that do? See, now Actually- what we are doing is we are just the plaque is already there. We are not removing it by angioplasty. We are just pushing it towards the wall, right? So by if it's plaque, can we melt it by heat wave or something like that?
so that it will be removed for like, it will be removed totally. Plaques can be removed by exercise, regular Okay. exercise and diet. So heart disease is a preventable disease. Okay, Okay. so nothing external can help. Okay, we can reduce the formation of plaque by doing good habits, following good diet and exercise. In spite of that, some people develop plaques and other problems, but this is the usual treatment. And we have to मतलब हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रॉब्लम प्लैक के कारण इतना नहीं हो रहा है जितना प्लैक रप्चर होने के कारण हो रहा है. ठीक है, तो यदि हम किसी चीज में से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे तो वी विल ब्रेक द लाइनिंग. जो अंदर की लाइनिंग है वो ब्रेक करेंगे. जैसे लाइनिंग ब्रेक होगी वहां पे क्लॉट जाके फॉर्म हो जाएगा एंड देन दैट विल फॉर्म द ब्लॉकेट देयर. ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है तो क्या होता है, सबसे पहला रिस्पॉन्स वहां पे ब्लड क्लॉट जम जाता है बड़ा सा. ओके, सो दैट इज नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन. तो ये स्टैंड्स होते हैं. स्टैंड्स ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स. स्टैंड्स जो है दे आर मेटल, सो मेटल को के ऊपर क्लॉट जम सकता है. तो वी हैव टू गिव सम ड्रग्स विच विल मेक द क्लॉट थिन, या ब्लड को थिन बना देगा जिससे उस पर क्लॉट नहीं जमेगा. ठीक है, तो जितने भी स्टेंटिंग वाले पेशेंट होते हैं उनको कुछ ड्रग्स चलती हैं जिनको हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स बोलते हैं, क्योंकि प्लेटलेट ही जाके उस पर प्लैक बनाती है. ओके, तो यदि किसी को अटैक हुआ है और अपन ने तुरंत ही उसका रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी कर दिया तो वो नॉर्मलाइज भी हो सकता है. प्लैक को सॉरी इन्फार्क्ट को बढ़ने से रोक सकते हैं. ठीक है, जब भी इन्फार्क्ट होता है ना तो सेंटर वाला एरिया होता है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा इन्फार्क्ट होता है. बाजू का जो एरिया होता है जिसमें थोड़ा ब्लड आ रहा है वो अभी भी बचा होता है. तो अपन यदि उसको खोल दें टाइमली तो वो बड़ा हिस्सा प्रिवेंट हो सकता है बचने से, खराब होने से. कि एक बार यदि वो खराब हो गया तो क्या होगा, जब पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, जस्ट मेरे हाथों की तरफ ध्यान दीजिए, ये पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन ये एरिया जो 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 इन्फेक्टेड है ये एक्चुअली बाहर आ रहा है. क्यों? क्योंकि अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है उसके कारण ये फुग्गे जैसा फूल रहा है. समझ रहे हैं? तो इट इज नॉट कॉजिंग प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, नहीं हो पा रहा है. ये जो एरिया है ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, इनफैक्ट उल्टा हो रहा है, ये फूल रहा है. तो ब्लड प्रॉपरली पंपिंग नहीं हो पाएगा एंड पेशेंट्स का हम बोलते हैं कि भाई इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया हार्ट का. पर ये सारी डिसीजेज जो है ये लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, तो इसको बचा जा सकता है. लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम है? एक्सरसाइज नहीं करते, कोई एंटरटेनमेंट का प्रॉपर वो नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, ईटिंग रेगुलर नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न नहीं है. 9 से 10 हम लेक्चर कर रहे हैं. ठीक है, टाइम इज मनी, पर्सनल प्रायोरिटी पीछे चली गई. फिर कॉर्पोरेट जो होते हैं वो हमको बिल्कुल मशीन समझ लेते हैं तो हमसे काम ही कराते रहते हैं कंटिन्यू. तो मनी इज द प्रॉब्लम. ओके, तो क्या करना है हमको? लाइफस्टाइल में चेंज लाना है. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ब्लड प्रेशर भी आता है. अभी तक किसी को कोई समस्या यहाँ पे कुछ समझने में दिक्कत हुई? I had only one question to ask. I'm Priya here. Actually, in one or two cases, even whom we know personally, we have seen that a person who suffers an attack at a young age, like whatever, 38 or 40, or even in the late 30s, vis-a-vis a person who suffers an attack at the age of 80. We have seen in one or two cases that the person who is older has a better chance of surviving the first attack than a person who is younger. What is the reason for that? Is there any reason for that? अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले. हाँ. क्या बताया? जैसे जैसे हमारी हार्ट की आर्टरी नैरोज होती जाती है, उम्र के साथ सबकी नैरो होनी है.
तो वहां पे क्या खुल जाता है, नेचुरल बाईपास खुल जाते हैं ना, कोलेट्रल्स। Okay. Okay. Reserved कोलेट्रल्स, capillaries. हाँ, तो कोलेट्रल्स खुल जाएंगे तो वो वहां से ब्लड जाने लगेगा। Okay. Okay, we have learned that in pranayam. हम्म। YTTC के. Okay, yeah. हाँ, हम लोग क्या करते हैं जब प्राणायाम में हम हाइपोक्सिया प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ और रास्ते बना रहे हैं और कोलेट्रल बना रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस उसमें भी करते हैं which are not yet recognized by the mainstream एलोपैथी। वो लोग क्या करते हैं कि जो पेशेंट जो हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं उनकी बॉडी में कुछ हाइपोक्सिया प्रोड्यूस करते हैं जिससे उनके कोलेट्रल्स बन जाए एंड देन उनके नेचुरल कोलेट्रल्स बन जाए। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कुछ। ठीक है, बट उसका रिकॉग्निशन इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें रिस्क भी होती है। ठीक है, सिंपल वे इज टू पुट ए स्टेंट, है ना। जस्ट अ मिनट ना, कॉल फ्रॉम हॉस्पिटल। हेलो, हाँ बोल। ठीक है, आगे बढ़े, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर, नॉर्मली भी ब्लड में प्रेशर होता है। ठीक है, बिना प्रेशर के तो ब्लड जा नहीं सकता। हमने कल डिस्कस किया था कि हमें ऊपर तक ब्लड पहुंचाना है तो हमको ब्लड प्रेशर चाहिए। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 ना? 120/80? ओके, ठीक है, बोल सकते हैं हम 130/90 से जो भी कम हो, 130/85 एक्चुअली, 130/85 से जो भी कम हो टिल 90 सिस्टोलिक, 100 और 90 सिस्टोलिक, उतना ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। एक नॉर्मल हमारे ब्लड मतलब सप्लाई मिलती रहे बॉडी को और यूरिन फॉर्मेशन होता रहे, दैट मच ब्लड प्रेशर इज इनफ फॉर आवर बॉडी। ओके, जब 130/85 से ऊपर बढ़ता है, मतलब 140/90 या और आगे बढ़ता है, तो हम इसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो यानी कम होता है ना, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया पढ़ा है ना हमने। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर ज्यादा हो गई हाइपो में। ठीक है, तो हाइपर टेंशन मतलब ज्यादा हो गया, टेंशन बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो हमको उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, नमक कम खाओ। ठीक है, उसके अलावा हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योग करो, ये सभी डॉक्टर बताते हैं। उसके बाद मरीज हमारी नहीं सुनता है, फिर और ब्लड प्रेशर बढ़ा के आता है, तो फिर दवाई शुरू करते हैं। ठीक है, ओकेजनली किसी किसी का ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ इमोशनल रीजन बढ़ सकता है, हॉस्पिटल में आ जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आजकल तो हम लोग कम पहनते हैं, लेकिन उसको हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन मतलब हम लोग जो व्हाइट एप्रन पहनते हैं, उसको देख के मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ अनफेमिलियर सराउंडिंग। अचानक से ब्लड प्रेशर टेस्ट हो रहा है तो मरीज को लगता पता नहीं क्या है, हॉस्पिटल में बचूंगा कि नहीं बचूंगा आज, तो दैट इज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो अदरवाइज ब्लड प्रेशर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी है, इसेंशियल भी बोलते हैं। इसेंशियल मतलब होना ही है, इस टाइप से पहले सोचते थे शायद। तो दूसरे टाइप के होते हैं, यदि कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें बढ़ जाता है। एंडोक्राइन मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो उनसे बढ़ जाता है। देन ब्लड वेसल्स की कुछ इशू है, कुछ दवाइयाँ भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो ये कारण होते हैं, पर यूजुअली ये इसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं ये तो पता होगा आपको, ठीक है ना।
ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कफ बांधते हैं। कफ मतलब एक बैंड जैसा होता है, उसको पूरा लपेट देते हैं, ठीक है। उसका जो मोटा हिस्सा होता है उसको यहाँ पे रखते हैं, जो फूलता है, और उससे ये ब्रेकियल आर्टरी जो है वहां पे कंप्रेशन होता है। तो जब उसको फुलाते हैं, फुलाने के बाद फिर जब डिफ्लेट करते हैं, मतलब प्रेशर कम करते हैं, तो यहाँ पे पल्सेशन आना शुरू होता है, जो हमको टक 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 ऐसा सुनाई देता है। जब वो आना बंद हो जाता है तो वो डायस्टोलिक होता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे करना है, वही नमक कम खाना है, एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉनवेज नहीं खाना है, स्ट्रेस कम करना है, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, जितना पोटेशियम थोड़ा बढ़ाना है खाने में, सोडियम कम करना है। तो ये अच्छा होता है हेल्दी वेट, मतलब वेट लॉस, ठीक है। यदि वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, दवाइयाँ भी है बहुत तरह की। डायूरेटिक यानी जो पेशाब बढ़ाती हैं, तो पेशाब के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर निकाल देती हैं, इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर बेसिकली अल्फा और बीटा जो है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। एड्रेनालिन एक इंपॉर्टेंट ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो बीटा ब्लॉकर, बीटा वो करते हैं। देन अदर आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, ये सब आपको पता होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Sir, I wanted to ask, how is reduction in salt connected to BP? Or rather, how sodium is connected to BP? बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, उसमें जो एनिमल स्टडीज हुई थी, उन्होंने क्या किया कि जो रेट्स थे, रेट्स को हाई सोडियम डाइट देना शुरू किया, जो कि आजकल नॉर्मल अमेरिकन डाइट है, जो आजकल नॉर्मल इंडियन डाइट भी बनती जा रही है। एवरीथिंग विच इज पैकेज्ड, जो भी पैकेज करेंगे उसको सॉल्ट तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज वो सड़ जाएगा। पहले हमारे मम्मी लोग बनाते थे घर में कुछ भी चीज, और वो तुरंत उसको खानी पड़ती थी, नहीं तो वो बचती नहीं थी, खराब हो जाती थी। तो खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चूहों को एक्सपेरिमेंट किया, चूहों को ज्यादा सॉल्ट खिलाया, उन्होंने देखा उनके ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सॉल्ट की थ्योरी आई, एंड देन सॉल्ट रिडक्शन से लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो बेसिकली सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट जब ज्यादा लेते हैं तो हमारे जी ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना जान लो कि सॉल्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जितना भी बाहर का पैकेज फूड आप खा रहे हैं, इट इज गारंटीड दैट यू आर गेटिंग योर ब्लड प्रेशर हाई। फिर आप कहेंगे हमारे तो जेनेटिक्स में ही है। सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग टू एन इंडिविजुअल, आई एम जस्ट टेलिंग इट टू एवरीबॉडी। तो ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि हमारे जेनेटिक्स में ही, हमारे सबको ओबेसिटी है और सबको ब्लड प्रेशर है और सबको डायबिटीज, ठीक है। दूसरा जो है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। तो 5 to 10 mm कम होता है, ज्यादा नहीं होता कम। 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही कम होता है जो हम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो किसी का यदि 170/100 है बीपी, तो हम एज्यूम नहीं करें कि उसको उससे कंट्रोल आ जाएगा केवल एक्सरसाइज से। बट किसी का जस्ट बढ़ा हुआ है, 120/80 होना चाहिए, उसका 135 से ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली उसको करना ही है। जितना हायर बीपी होगा उतना प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। योग से, प्राणायाम से बहुत कम हो जाता है। आगे बढ़े, ठीक है। डायबिटीज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज, है ना। डायबिटीज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें ब्लड वेसल्स की भी प्रॉब्लम होती है, जैसे ये रेटिना की वेसल्स हैं, इनमें भी प्रॉब्लम होता है, ऐसे हार्ट की वेसल्स भी ब्लॉक होती है। और आपने यदि सुना होगा ट्रिपल वेसल ब्लॉकेट बोलते हैं। हार्ट की जो दो वेसल्स हैं, दो वेसल्स मिलके 3 वेसल्स बनाती हैं, 2 साइड लेफ्ट में होती है और एक राइट में। वो 3 मेन वेसल्स यदि ब्लॉक हो जाए तो उसको फिर नॉर्मल एंजियोप्लास्टी यूजुअली नहीं कर पाते, उसको बाईपास करना पड़ता है, ट्रिपल वेसल ब्लॉक, ठीक है। तो बाईपास सर्जरी होती है, डायबिटिक्स में ज्यादा करनी पड़ती है। देन कोलेस्ट्रॉल, ये सर ने फोटो दिखाया था कि ये कोलेस्ट्रॉल कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है, जैसे हमारे ब्लड वेसल में होता है वैसे। तो कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिसमें आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही रहता है,
वो जेनेटिक है आपका, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो उसमें ब्लड वेसल्स ज्यादा ब्लॉक होती है जल्दी, है ना। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू क्या है बुक में आप पढ़ लेना, डिजायरेबल जो है 100 से कम है, 130 तक चल सकता है, 70 से कम हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एलडीएल का, एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, सो कॉल्ड अच्छा, ठीक है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन ठीक है अभी आप लोग इतना ही समझो कि वो अच्छा ही है, तो वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, है ना। देन ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बेसिकली वो भी आपका 150 से कम होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज जो हमको करनी है ब्लड प्रेशर और इसको कंट्रोल करने के लिए, ओबेसिटी कंट्रोल करनी है। ओबेसिटी हम कैसे मेजर करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स से। कितना होता है बॉडी मास इंडेक्स? Less than 25. नहीं, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? Weight divided by your height in meters square. Yes, good. So normal should be around 22, less than 23 in India, ठीक है, और बाहर के देशों में लेस देन 25, ठीक है। हमारे इंडिया में सारा फैट जो है एब्डोमेन में जमा होता है, हम लोग कहीं और नहीं रखते, हम लोग उसको पेट में ही छुपा के रखते हैं, और ये पेट का फैट ही है जो सबसे खराब होता है। तो इवन जैसे मैं लीन हूं बिल्कुल, लेकिन मेरे पेट में फैट ज्यादा है, तो आई एम प्रोन फॉर डायबिटीज, आई एम प्रोन फॉर हार्ट अटैक, ओके। तो बेली फैट जो है इट इज वेरी एक्टिव फैट, हार्मोन इसमें एक्टिव होते हैं काफी, तो बहुत सारी चीजें उसमें बाद में बताएंगे, कभी डिस्कस करेंगे। देन वेस्ट सर्कम्फरेंस, वेस्ट सर्कम्फरेंस का भी वही हाल है, बाहर के देशों में ज्यादा मानते हैं, हमारे देश में मेल्स के लिए लेस देन 90, फीमेल के लिए लेस देन 80। देन एक वेस्ट हिप रेशियो भी होता है, ठीक है, शुड बी लेस देन 0.8। तो बेसिकली हमको क्या करना है, जो मॉडिफाइबल फैक्टर है उसको मॉडिफाई करना है। टोबैको, अल्कोहल, ओवरवेट, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी फैक्टर्स, हाइपरटेंशन, सबको बंद करना है, ठीक है। सर ने बताया था कि नॉनवेज एज सच इज नॉट गुड थिंग, खासतौर पे जो मीट होते हैं, मीट है, एग्स हैं, वो खराब है, पोल्ट्री खराब है, बट सम फिशेस में भी बेटर, ठीक है। देन एक्सरसाइज के बेनिफिट बताए थे, ठीक है। ऑलरेडी इसमें बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, तो ऐसा हम अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारी स्टडीज हैं जो कोट करती है कि आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको हार्ट की रिस्क कम होती है, ब्लड प्रेशर की रिस्क कम होती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, क्या मॉडिफाई करना है, वो हमको देखना है। सॉल्ट इंटेक कम करना है, अचार पापड़ जो हम खाते हैं वो बंद करना है, अचार पापड़ बाहर का खाना, वेट को कंट्रोल करना है, फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा खाना है, देन एक्टिविटीज रेगुलरली करना है, और अल्कोहल बंद करना है। ये लेस देन 2 ड्रिंक्स ए डे जो है ना, वो इंडस्ट्रियल प्रेशर में है, ऐसा मान के चले आप, ठीक है। अल्कोहल इज ए बिग इंडस्ट्री लाइक गन लॉबी, ऐसे एक अल्कोहल इंडस्ट्री है जो यूएस में और सब जगह है, तो दे ट्राई टू मैनिपुलेट द थिंग्स इन देयर फेवर, ओके। तो ये चीजें हैं, देन ये बहुत सारी स्टडीज है जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना हो। कैसा था लेक्चर, बोरिंग तो नहीं था? ये भी फीडबैक भी दे सकते हैं। Hello, sir. I'm Manjiri. It was a really good lecture. Sir, it's regarding actually, I have done the YTTC from YVN only. So during pranayam, in health and peace, it was written that during the Kumbhak stage, heart gets well needed rest. So how that is connected? Because heart is continuously pumping. How can it get rest during Kumbhak?
So I had that doubt that time also, but I couldn't ask to anybody. Okay. That is because of the bradycardia. Okay. Whenever there is bradycardia, मतलब pulse rate कम हो जाएगी, कोई भी प्राणायाम हो जिसमें pulse rate कम हो जाएगी, तो अपने आप हार्ट को रेस्ट ज्यादा मिलेगा. मतलब हार्ट पंप तो उतना ही करेगा ना. नहीं, अच्छा, रेट आपको रेस्ट कम मिलता है. इट्स नॉट कंप्लीट रेस्ट नहीं है, समझिंग यही है ना. मतलब थोड़ा स्लो बीट स्लो करेगा. हो गया. हाँ, तो slow हो slow हो गया गया तो क्या हुआ? देखो हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है. हार्ट को कब ब्लड मिल रहा है? तो तब ब्लड मिल रहा है जब डायस्टोल हो रहा है, जब हाँ. हार्ट रिलैक्स कर रहा है. यस. ठीक है ना. तो डायस्टोल फेज जितना बड़ा होगा, कब बड़ा होगा? जब जितना हार्ट बीट कम होगा, जब हार्ट धक 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 कर रहा है और धक धक हाँ. धक, तो आपको देखो स्पेस मिल रहा है कि नहीं उसको. ओके. ठीक बट है. यू नो, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसे था कि ड्यूरिंग कुंभक स्टेज द हार्ट इज नॉट गेटिंग प्योर ब्लड, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? सो हम्म. इट शुड beat faster to acquire more oxygenated blood, isn't it? ऐसा नहीं होता. दिल खुद के लिए नहीं धड़कता कि मेरे को ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की तो मैं करूंगा ज्यादा. इट इज ऑन द डिमांड ऑफ पेरिफेरी. बाहर के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, किडनी क्या डिमांड कर रही है, ब्रेन क्या डिमांड कर रही है, उसके ऊपर धड़कता है. न कि हार्ट को Okay. मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो मैं कम धड़कूंगा या ज्यादा धड़कूंगा. ऐसा नहीं है. The overall requirement of the body will increase, right? नहीं, वो Because क्यों होगी? वही तो due बताओ to ना. in Kumbhak stage itself, the reserve capillary gets activated of the brain also because they are not getting oxygenated blood, right? In the similar manner, even the heart is not getting oxygenated blood to supply overall body, right? So it will try to pump more to get more oxygenated blood, isn't it so? That process will get faster or it will slow down. So I had that doubt. कोई बात नहीं. कुंभक में ब्रेडिकार्डिया होगा बिकॉज ऑफ वेगस स्टिमुलेशन. Yeah. ठीक है. जब भी ब्रेडिकार्डिया होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और ऐसे बॉडी की बाकी जगहों की भी डिमांड कम हो जाती है. क्योंकि जब भी कुंभक कर रहा है तो आदमी भाग के कुंभक नहीं कर रहा है. आदमी बैठा हुआ है एक जगह पे और ही इज इन रेस्टिंग पोजीशन. यदि उसको जरा भी डिमांड होगी तो वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा. सबसे पहले उसका सांस लेने का हो जाए. कोई भी आदमी वॉलंटरीली इतनी देर तक सांस नहीं रोक सकता जितना उसका खत्म हो जाएगा. कोई भी नहीं कर सकता ऐसा. ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है. जैसे हार्ट ऑटोमेटिक धड़कता है, ऐसे सांस भी ऑटोमेटिक है. तो वंस यू लूज द कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, ऑटोमेटिक सांस शुरू हो जाएगी. और हमें जो कुंभक सिखाया गया था ना सर, हाँ. वाइवियन में, हाँ. मतलब वाइवियन में इवन इन स्टैंडर्ड के सारे जो भी प्राणायाम है उसमें कुंभक हमें ये बताया गया है कि कुंभक ब्रीद इन करके कुंभक करना है, ब्रीद आउट करके कुंभक करना ही नहीं है. अभ्यंतर कुंभक it is. सहज, and that too सहज अभ्यंतर कुंभक. वो क्यों बताया गया? जो ब्रीद आउट कुंभक जो अष्टांग योग में बताया गया, तो वो स्पेशली सावंत सर ने बताया था कि वो पूरा ऋषि मुनि जिनको बहुत ही कंट्रोल होता है अपने बॉडी पे, अपने ब्रीथ पे, तो वो करते हैं. तो हमें नॉर्मल इंसान को ब्रीद आउट करके कुंभक करना ही नहीं है. तो ऑक्सीजन कम की मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये कुंभक जो भी करते हैं ना हम लोग, इट इज विद इन द कैपेसिटी करना है. Exactly. सहज कुंभक करते हैं. विद इन द कैपेसिटी करते हैं तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला. वैसे भी आपका सांस टूट जाएगा यदि आप नहीं करेंगे. ऑटोमेटिक ब्रेथ आउट हो जाएगी या ब्रेथ इन हो जाएगी. ठीक है. ब्रेथ आउट करके होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, बट करते हैं. ब्रीथ आउट करके भी होल्ड करते हैं हम लोग. हमको पता नहीं पड़ता. सहज अब बाह्य कुंभक भी हो जाता बाह्य है, कुंभक. हाँ. हो जाता है कई बार. ठीक है. Thank you. मैं भी वाइवियन स्टूडेंट ही हूँ. और कोई क्या? भानु कुछ बोलना है इस बारे में? अभ्यंतर और बाह्य कुंभक हमको ऐसा कुछ नहीं बताया ना डिवीजन कि बाह्य नहीं करना है, अंतर नहीं करना है. हमको जो सिखाया हमारे YTTC के कोर्स में नहीं था वो. हाँ, बाह्य कुंभक नहीं था, मतलब बताया था, बट हम करते हैं. सहज और वो भी हम करते सहज ही हैं. था. अभ्यंतर भी सहज ही था. हम करते As per हैं. your capacity, yeah. हाँ, बहुत सारे योगिक स्कूल जो है, स्कूल्स और दूसरे,
उसमें बाह्य कुंभक कराया जाता है, बट दैट इज वेरी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, आप इसमें क्या करते हो? आपका जो मॉक इनहेलेशन में क्या होता है, कौन सा कुंभक होता है? That is बाह्य कुंभक, because you हाँ, are ये तो creating करते हो, negative ये pressure. तो करते हो आप। नवली क्या करते हो? बाह्य कुंभक में ही तो करते बाह्य हो। कुंभक होता है। तो फिर कहाँ से नहीं किया बाह्य कुंभक? सब तो किया। प्राणायाम में नहीं किया। वो ठीक है, हाँ, yes, we did. बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है, अलग अलग स्कूल्स ऑफ योग हैं जो अलग अलग तरीके से कराते हैं। कुछ लोग भस्त्रिका के बाद भी बाह्य कुंभक कराते हैं, है ना, मतलब आप सांस को बाहर निकाल के फिर आप उसको रिटेन रखते हो भस्त्रिका के बाद, कुछ इसमें अंदर रख के करते हैं आप। मेन थिंग इज दैट अफेक्ट द वेगस नर्व। वेगस नर्व जो स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट बीट कम हो जाएगी, बॉडी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई नो। Yes, please. Anybody else? आज का दिन भारी हो गया ना ज्यादा। चलो, आंखें बंद कर लें। Relax the body. Only your shoulder should be bit back. Neck should be straight. Gentle smile on your face. Take attention to your breathing pattern. Now take a long deep breath in. Oh. ओम की तरंगों को अपने मन और शरीर में महसूस करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं, जो ओंकार के प्रभाव से अब धीमी हो चली है। पूरी शरीर में जो सहजता और शिथिलता है उसको महसूस करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। गुड नाइट, बाय बाय। Thank you, sir. कल Thank you, नितिन sir.